नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय महापुरुषो साथे जीव कोईपण प्रकारना संबंधथी जीवનમાં प्रवेश करे, संबंध कोईपण होय, पण जो महापुरुषना जीवનમાં प्रवेश करे अथवा महापुरुषना जीवનમાં प्रवेश करे तो जीवનું कल्याण निश्चित है। भले तो तमे कोईपण महापुरुषना पत्नी बनीने एमां आवो, भाई बनीने आवो, पिता बनीने आवो, प्रेमिका बनीने आवो, भक्त बनीने आवो, माता बनी कोईपण बनीने आवो, पण जो तमे महापुरुषना जीवनमां आव्या छो एटले कोईक ने कोईक विशेष योग्यता छे। विशेष योग्यता वगर कोईने जीवनमां प्रवेश थाय नहीं एवो निमित्त नैमित्तिक संबंध ज एवो छे। तीर्थंकरना माता पिता कोण होय तो एक भवावतारी होय तीर्थंकरना माता पिता होय अने जे तीर्थंकरो गृहस्थ छे एमना जे पत्नीओ वगैरह कोण होय तो अत्यंत निकट भव्य होय एवा ज होय। રાજુલ નેમિનાથનો આપણે સાંભળીએ છીએ કેટલા ભાવથી એ સાથે સાથે પતિ પત્ની રૂપે જ આવતા હતા અને છેલ્લા ભાવમાં ઘણો રાગ હતો એને વૈરાગમાં બદલ્યો એ પણ નેમિનાથ જ બદલ્યો છે। સગાઈ કરીને લગ્ન નહીં કર્યા, સગાઈ તો સગપણ થયો પણ લગ્ન થયા નહીં। આનાથી જે રાજુલ દેવીને વૈરાગ આવ્યો છે
તો એનો મૂળ નેમિનાથ જ છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એમ છે કે મહાપુરુષોના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારથી એમનાથી પ્રેમ કરો. અને પારસનાથ અને કમટની તો પૂર્વ વાત છે કે શત્રુ બનીને આવ્યો જીવનમાં. કમટ છે એ પારસનાથનો શત્રુ બનીને આવ્યો, પણ પારસનાથથી પ્રતિબોધ પામ્યો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ એને પારસનાથથી થઈ. મતલબ તમે શત્રુ બનીને પણ પ્રવેશ કરો છો તો એ તો તમને તારવાના જ છે. આ મહાપુરુષોનું અલૌકિક આવું મહાત્મ્ય છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારે નિકટ તો આવો. જો તમે નિકટ આવી ગયા, એમના ઘેરામાં આવી ગયા એટલે ખતમ વાત. હવે તમારી ચાલે નહીં. હવે તો એ તમને જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં તમને લઈ જશે અને એ સીધા તમને મોક્ષ સુધી પહોંચડાશે અને સંસાર નષ્ટ કરાવશે. વિતરાગ કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. આપણને વિતરાગ કરશે, નિયમથી કરશે, પણ આપણે શું કરવાનું છે? આપણે રાગ કરવાનું છે. આપણે રાગ કરો નહીં, આપણને શું કરશે? વિતરાગ કરે. એવો આ ભક્તિનો મંત્ર છે, આ ભક્તિ માર્ગ છે. લોકો ભલે એને રાગ કે પ્રશસ્ત રાગ કે, પણ ભક્તિ તે ભક્તિ છે ને એ વિતરાગતા તરફ જ લઈ જાય છે. એવા ઇતિહાસમાં ઘણા બધા ઉદાહરણો છે કે મહાપુરુષોના પત્નીઓ અથવા કોઈ પણ હોય, મા વગેરે, કે એકદમ જીવનમાં સામાન્યપણે પ્રવેશ કર્યું પણ એમનું જીવન ઘણું ઊંચું થયું કે જે સ્વયં પૂજ્ય થઈ ગયા છે. તો આપણે તો સૌભાગ્યશાળી છીએ. પૂજ્ય બેન શ્રી સાહેબજી જીવન એક આ યુગમાં તો આદર્શ જેવો જ છે. કેમ કે આટલો સાત્વિક જીવન ને આ કાળમાં તો એવું હવે થઈ ગયું છે ને, આખી જીવનભર લાઈફ પતિ પત્નીની ચાલે કે નહીં ચાલે એ જ અત્યારે તો સંકટ છે. અત્યારે તો એનો જ સંકટ આવી ગયો છે. તો આપણે પ્રેરણા લઈએ અને વંદન કરીએ. અને ઘણી વાર એવું હોય મહાપુરુષોના જીવનમાં ઘણા બધા એવા આવે. સંત તુકારામના જીવનમાં એમના પત્ની આવ્યા. એમનો સ્વભાવ એકદમ ઉલટો, સંતત્વથી એકદમ ઉલટો. અને આપણે તો ખ્યાલ છે બધો કે એમણે કેવી રીતે એમને શેરડી મારીને 2 ટુકડા કર્યા. તો એકદમ ઉલટો સ્વભાવ, પણ છેલ્લે જતા જતા એમને સંત બનાવીને ગયા. એ સંતનું લક્ષણ છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારથી પ્રવેશ કરો ને, પણ કેમ કે સંત પોતાનો સ્વભાવ છોડે ને, અને ધીમે 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 એના અંદર એવો પ્રવેશ કરે કે આખા એના વિકારો જતા રહે છે. પેલા કોણ આવે, જેસલ તોરણનો આવે છે, જેસલ તોરણ. જેસલ એ તો ડાકુ હતો. અને આશ્ચર્યની વાત છે કે એને તોરણનું અપહરણ કર્યું હતું. હા, મતલબ એટલે માંગીને. હા, અને માંગીને સારા આશયથી નહોતી લીધી, ખોટા આશયથી લીધી. કોઈ પતિને કોઈના પતિથી માંગે કે તારી સ્ત્રી મને આપ, અને એ પતિદેવ એવા સંત હતા, મહાત્મા, એમણે આપી દીધા સંત તોરણને. અને એ જેસલના જીવનમાં પ્રવેશ કરી એટલે જેસલ સંત થઈ ગયા. એમનો જે પિક્ચર છે એ જોવા જેવો છે. તો તમે કોઈ પણ પ્રકારથી સંતના જીવનમાં પ્રવેશ કરો, એ કરો તો ખરા એકવાર, તો પછી જુઓ કે કેવી રીતે આપણને લઈ જાય છે. હા હા, પાપ પોકારે છે. એટલે બધા પાપો એમણે એના સાથે પ્રાયશ્ચિત કર્યું. આ પ્રાયશ્ચિત કેટલું મોટું તપ છે. અને સંત મહાત્માઓ પાસે જઈને તમે એમને સર્વ સમર્પણ કરી દો ને, પાપ તો ઓટોમેટિક ધોવાઈ જાય છે. પણ આ જીવનો એક અહંકાર કાઢે બસ, તો બધું એને સવળું થઈ જાય છે. આવું મહાત્માનું જીવન છે. જેટલો બને એટલો પ્રેમ કરવો અને દુર્જનોથી જેટલું બને એટલું દૂર રહેવું.
સજ્જનોથી જેટલો બને એટલો પ્રેમ કરવો અને દુર્જનોથી જેટલું બને એટલો દૂર રહેવું, એનું ઉદાહરણ છે મહાભારતમાં દુર્જન સંગતિનો. કર્ણ મહાત્મા હતો, પણ એને સંગતિ દુર્યોધનની કરી, અંતે દુર્ગતિમાં જવું પડ્યું. તમે ઘણા બધા સારા હો, પણ તમે સંગતિ જો ખોટા વ્યક્તિની કરી લો ને તો તમારો એ જ હાલ થશે તમારો. એટલે જેટલું સજ્જનોના સમીપ જવાનું છે એટલું જ દુર્જનોથી દૂર પણ રહેવાનું છે. આ બંને વસ્તુઓ એક સાથે કરવાની હોય છે. ચાલો, મિચ્છામિ દુક્કડમ પ્રાસંગિક. ક્યાં ચાલે છે આપણે? 20મી કડી. હા, આત્મબોધ શતક 20મી કડી. એક એક લીટી જેલવાની છે. नश्वर तन धन गेह प्रशंसा सुनकर क्यों इतराते हो. नश्वर तन धन गेह प्रशंसा सुनकर क्यों इतराते हो. कर्म निमित्ता दीन सभी यह समझ नहीं क्यों पाते हो. कर्म निमित्ताधीन सभी यह समझ नहीं क्यों पाते हो. शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर शर्म तुम्हें क्यों नाती. शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर शर्म तुम्हें क्यों नाती. सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम क्रिया न यह शोभा पाती. सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम क्रिया न यह शोभा पाती. नश्वर तन धन गेह प्रशंसा सुनकर क्यों इतराते हो. कर्म निमित्ताधीन सभी यह समझ नहीं क्यों पाते हो. शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर शर्म तुम्हें क्यों नाती. सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम क्रिया न यह शोभा पाती. सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम क्रिया न यह शोभा पाती. खूब सुंदर बात करी है. नश्वर तन धन गेह प्रशंसा सुनकर क्यों इतराते हो. तन धन गेह, तन का मतलब शरीर, धन का मतलब अपने चल अचल जो संपत्ति है वो सब धन, और गेह का मतलब घर. तो उनकी प्रशंसा सुनकर क्यों इतराते हो, खुश क्यों हो जाते हो? क्योंकि ये सब तो नश्वर हैं. આપણે કોઈક સુંદરતાનું વર્ણન કરને ગए તમે ઘણા રૂપાળા લાગો છો, તો શું વાત છે ને, उसका वो दास हो जाता है. जो अपनी प्रशंसा करता है सामने वाला उसका दास हो जाता है, वो उसके ही पास रहता है. निंदा करने वाले के पास कोई नहीं रहता है, प्रशंसा करने के वाले पास हर कोई रहता है. धन की प्रशंसा कर दे कोई अपने घर की, તમારો બંગલો ઘણો સારો બનાવ્યો છે, તો હજી બધી જગ્યા લઈ જઈને બતાવે, જો આ અમારો બેડરૂમ છે ને, આ અમારા પાછળનું છે ને, આ અમારા આગળનું છે ને, આવા પ્રકારથી બધું બતાવે. तो यहाँ तो कहते हैं कि ये तो सब नश्वर हैं, इसकी प्रशंसा में तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, ये तो सब ईंट पत्थर हैं. और ये शरीर भी क्या है, ये भी एक प्रकार का मिट्टी है, ये भी जाने वाला है. तुम जिसको अपना कहते हो वो एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं रहता है और तुम्हारे अनुसार करता भी नहीं है. ये शरीर अपने अनुसार चलता नहीं है और अपना भी नहीं है और हमेशा बदलता है.
जब से अपने पैदा होते हैं ना, आत्मा शरीर धारण करता है नया, तब से लेकर के ये शरीर बदलना चालू होता है। तो जो हम एक क्षण में देखते हैं, दूसरे क्षण में वो शरीर नहीं रहता है, वो उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है। जो पास में रहता है उसको परिवर्तन ख्याल में नहीं आता, परंतु कोई साल भर बाद आकर के उसको देखता है तो परिवर्तन स्पष्ट ख्याल में आता है। वो मम्मी पापा होता है ना, वो उसका बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तब भी उनको छोटा ही लगता है, क्योंकि वो परिवर्तन ख्याल ही नहीं आता उनको, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहते हैं। परंतु ये तो परिवर्तन होने वाला है, इसलिए तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे अनुसार भी नहीं रहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बाल सफेद हो, पर हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये शरीर कमजोर पड़ जाता है। कोई नहीं चाहता कि इस शरीर में कोई बीमारी हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा शरीर थोड़ा सा भी कुरूप दिखे, अच्छा दिखे, एकदम जवान दिखूं, ऐसा ही होता है ना सबको। इसीलिए तो ये सारी चीजें लगाते हैं, मुंह पर लगाता है ना, क्या लगाता है ना, क्या मालिश करता है ना। परंतु ये दगा देने वाला है, धोखेबाज है, इसीलिए उसकी प्रशंसा में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करना, उसके साथ बहुत मित्रता करना नहीं और इतराना भी नहीं। कर्म निमित्ताधीन सभी यह समझ नहीं क्यों पाते हो। ये सब तो किसके अधीन है? कर्म के अधीन। जैसा कर्म का उदय हुआ वैसा है। ये तो नाम कर्म की 193 प्रकृतियां। कितनी प्रकृतियां नाम कर्म की? तो जितना भी बाहर जो दिखता है ना जीवों में, वो सब नाम कर्म का खेल है सारा का सारा। अलग अलग इसलिए शरीर मिले हैं, आपने जैसा किया था वैसा आपको मिला जी। इतराते का मतलब होता है अभिमान हो जाना उसके ऊपर। हाँ, उन्मत्त हो जाना उसके ऊपर। इतराना शब्द अब मैं भाव समझ रहा हूं उसको, कि वो मलकाय है, ऐसा नहीं कहते। मलकाय है, मन में मलकाय है। कोई प्रशंसा करिए ना આપણે તો એના મનમાં મલકાય ને એને આમ સારું લાગે ને એને એમ લાગે કે હું આવો જ છું, એનું નામ इतराना कहलाता है। थोड़ा इसमें अभिमान का अंश है और थोड़ा इसमें राग का अंश है और थोड़ा इसमें मोह का अंश है। ये सब मिल करके इतराना होता है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो वो इतराना होता है। छक्का एम के नहीं, छक्का ही गयो, वो भी इसमें आता है। हाँ, उन्मत्त हो जाना, छक जाना, ये सारा के सारे इसमें आते हैं। इतराना, मलमा शु मलकाय। हाँ, तो गुजराती में मलकाय शब्द से वो इतराना शब्द है। तो कहते हैं कर्म निमित्ताधीन सभी यह समझ नहीं क्यों पाते हो। नाम कर्म में आपने पहले जैसे बांधा था वैसा आपको शरीर मिला है, अब क्यों इसमें अपना अपना करते हो? ये तो कर्म का खेल है, आत्मा का इसमें कुछ नहीं है। आगे बहुत जोरदार बात कहते हैं, शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर शर्म तुम्हें क्यों ना आती। अब आप जैसे ही शरीर आदि की प्रशंसा करते हैं, अपन इतराते हैं, अंदर मलकाते हैं, तो क्या होता है कि क्या बढ़ा? अपने मोह बढ़ा, राग बढ़ा। और मोह और राग बढ़ते तो क्या होता है? नए कर्मों का आश्रय होता है। नया कर्म बनता है अपने, और नया कर्म बंधा मतलब आपने किसको प्रोत्साहित किया है? शत्रु पक्ष को। क्योंकि आत्मा और कर्म ये दोनों अनादिकाल से शत्रु हैं। उनकी शत्रुता जैसे जन्मजात वैरी होते हैं ना, कुत्ता और बिल्ली और ये सांप और नेवला, ऐसे इनकी जन्मजात शत्रुता है। तो भाई ऐसा मोह करके, राग करके आप क्यों शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर रहे हो? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीवो हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयोत्स्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। कर्म है वो तो कर्म का हित चाहता है, और आत्मा है, जीव है, वो जीव का मतलब जीव तो अपने जीव भाव में रहना चाहता है, कर्म अपने कर्म भाव में रहना चाहता है। दोनों अपने अपने भाव को बढ़ाना चाहते हैं।
क्योंकि सब अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। तो तू मूर्ख है, तू कर्म के प्रभाव को क्यों बढ़ा रहा है? ऐसा अपने को कह रहे हैं आचार्य महाराज कि हम मोह राग द्वेष करके हम कर्म के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम तो उसकी सहायता कर रहे हैं, उल्टे शत्रु पक्ष की सहायता कर रहे हैं। तो मोह क्यों करते हो, राग क्यों करते हो? ऐसा कहते हो। जैसे ही राग करोगे, मोह करोगे अथवा द्वेष करोगे तो ये कर्म की संतति बढ़ेगी और फिर अपने को अच्छा शरीर मिला और उस अच्छे शरीर का अगर अभिमान हो और बाकी सब अपने को उससे तुच्छ लगते हो तो समझ जाना अब आपको अगले जन्म में ऐसा ही तुच्छ शरीर मिलने वाला है कि कोई आपके सामने देखेगा नहीं। ये तो जैसा करनी वैसी भरनी है। तो अपने क्यों शत्रुओं को प्रोत्साहित करना? बहुत बड़ी बात कही। अपने दिन भर अपन शत्रु पक्ष को ही प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसी को बढ़ाते रहते हैं। ये जीव राग द्वेष करके दिन भर अपने शत्रु को ही प्रोत्साहित करता रहता है। ज्ञान ध्यान तप में तो व्यक्ति कितना लग पाता है, और अगर आप ज्ञान ध्यान तप में लगे रहो तो आपका शत्रु पक्ष है वो भाग जाएगा, फिर आप अपने मित्र हो जाते हो। फिर ये सब आक्रमण करते हैं ना, अपन शत्रु पक्ष को मोह करके, राग करके, द्वेष करके। कर्म तो हमने कमाए। अब जब इसका उदय आता है ना, उस समय व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। ओ भगवान તમે આમ કેમ કર્યું? हाँ, ए भगवान मैं તમારું શું બગાડી દીધું? તમે આવું કર્યું મારા સાથે, મારો શું दोष है? कि भाई तेरे भगवान कौन करेगा? भगवान को कोई फुर्सत नहीं है, वो तो अपने परम समाधि में लीन है। तूने ये कर्म किए, तूने कर्म किए तो तू भोगो। जब जीव कर्म करता है ना, उस समय तो उसको बहुत मीठा लगता है, राग करता है, मोह करता है, भोग करता है, विषय सेवन करता है। उस समय तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जब उसका विपाक आता है उस समय उसको बहुत खराब, फिर वो भगवान को कोसता है। उस समय भगवान को याद नहीं कर रहा है। जब वो भोग रहा था, राग द्वेष कर रहा था, उस समय भगवान को याद नहीं कर रहा है। अब भगवान को याद कर रहा है जब फल मिल रहा है उस समय। और जो पहले ही भगवान को याद कर ले, आत्माराम को याद कर ले, भेद विज्ञान कर ले, उसके कर्म कैसे बने? इसलिए सावधान होकर के जीना चाहिए। हाँ, मैं आयो तुम पास, सुनि जिन सुजस तिहारो, नीति निपुण जगराय, कीजे न्याय हमारो। दुष्ट कर्म महारि पुजोर, एकन कान धरे जी, मन माने दुख दे, काहु सो नाहि डरे। दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजे, इनवे भूधर दास, हे प्रभु ढीलन कीजे। वो कहते हैं मैंने तो कुछ किया, बिन कारण जग बंधु, बहुविध बैर लियो जी। वो यूं कहते हैं बिन कारण बहुविधि बैर लिया है, परंतु तुझे पता नहीं है कि तूने ही वो बैर बढ़ाया है, अभी भूल गया। इस जन्म में तो हमको पता नहीं चलता है हमारे पाप का उदय कि भाई मैंने तो किसी का नहीं बिगाड़ा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, परंतु तू कर्म करके भूल गया भाई, इसलिए तेरे ऐसा हुआ है। कोई पद्म पुराण में कथा थी, इंद्र, विद्याधरों का राजा इंद्र था, तो रावण से हार जाता है। वो मतलब वो किसी से आज तक नहीं हारा, वो रावण से हार जाता है। तो वो एक मुनिराज होते हैं, वो रावण तो छोड़ देता है, सबको हरा कर छोड़ देता है और वापस राज दे देता है सबको। तू तेरे जैसे राज करता था करना, मेरे को आगे नमस्कार करना बस, और कुछ नहीं। परंतु अब एक बार जिसको राजा होने की आदत पड़ गई ना, क्षत्रिय है, किसी का दास बन के नहीं रह सकता है वो व्यक्ति। तो अब कहे कि रावण ने मेरे को हरा दिया और अब मैं उसके अधीन होकर कैसे रहूं, ये मेरे क्षत्रिय वृत्ति के
अनुकूल नहीं है, अब तो मैं जैनेश्वरी दीक्षा लूंगा, मैं उसको झुकाऊंगा, ऐसा सोच ही रहा था। और सोचते सोचते वो कोई मुनिराज आ गए वहां। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो उनके मंदिर में बैठा था। फिर मुनिराज को प्रणाम करके फिर पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आप तो अवधि ज्ञानी हो, त्रिकाल का जानते हो, मैं रावण से हारा कैसे? मैं शक्ति में किसी भी प्रकार से कम नहीं हूं, तो मैं रावण से क्यों हारा? ऐसा अपयश अपमान मुझे क्यों झेलना पड़ा? तो उस समय वो इंद्र को कहते हैं कि तू भूल चुका है, अभी इस बात के हजारों साल हो गए, पर तूने इसी जन्म में तूने एक मुनिराज का अपमान किया था, वो निर्दोष था और उसका अपमान किया था, और इस कारण से तुझे ये सारा झेलना पड़ा है। इसलिए जब जीव करता है उस समय तो उसको ख्याल आता नहीं और करके भूल जाता है, जब उदय आता तो पता चलता है ओ मैंने कब किया था ये, तब पता पड़ता है कि तेने ही किया था। ये सारी चीजें, कुछ चीजें हमको याद रहती नहीं। तो कहते हैं शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर, शर्म तुम्हें क्यों ना आती? तुम क्यों शर्म नहीं आती तुमको? दूसरे के पास जा रहे हो। महाराणा प्रताप के 3 भाई, बहुत सारे भाई थे, युद्ध तो 3 भाइयों ने किया, उसमें 2 भाई अकबर के सेना में चले गए, जुगमाल और शक्ति सिंह, दोनों अकबर से मिल गए, प्रताप अकेले। तो लोग कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है शत्रु पक्ष में जाते हुए? परंतु जीव मोह के अधीन होता है ना, तो उसको शर्म आती नहीं। अपना कौन पराया कौन वो समझ पाता नहीं। एक कड़वी बात अपने पिता ने कह दी, अपने भाई ने कह दी, तो बहुत बुरी लग गई और वो शत्रु पक्ष से जाके मिल गया। शक्ति सिंह, प्रताप ने कड़वी बात कह दी कोई, और वो उसका सारा प्रेम भुला दिया। जीवन भर अपने बड़े भाई ने कितना प्रेम दिया था वो सब भुला दिया, और एक कड़वी बात के कारण से वो अकबर से जा। ये जिसके साथ राग आदि ज्यादा होते हैं ना, मोह आदि ज्यादा होते हैं, ये ऐसा होता है कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और कभी हमने उसको कुछ डांट दिया वगैरह तो वो पूरा बदला लेता है, वो हमारा पुराना प्रेम भूल जाता है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा, ये संसार का स्वरूप ऐसा है। किसी से भी कितना भी प्रेम करो, पर एक बार अपने से कुछ गलती हो गई तो वो अपने को इतना नफरत करने लगता है। ये जीवों का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को जान करके ही जीवों को वैराग आता है। ये वैराग्य के कारण है सारे के सारे। सावधान होकर जीना चाहिए। सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम, क्रिया न यह शोभा पाती। हम किसके वंशज हैं? सिद्ध भगवान के वंशज है, जो कि सभी शत्रुओं को जीत लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान है, वो शत्रुओं की सहायता करते नहीं है। अब तो वो तो अपने परम वितराग परमात्मा स्वरूप में लीन हो चुके हैं, संसार का आवागमन उनको नहीं है। और हम ऐसे सिद्ध प्रभु के वंशज होकर के भी फिर ये कहाँ कर्मों के अधीन पड़े हुए हैं और उन्हीं का प्रभाव निरंतर निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो हमको शर्म आनी चाहिए। ऐसा करके अपने को माताजी डांट रहे हैं अच्छी तरह से डांट खिला रहे हैं, भाई अब तो आप अपना समझो। अब आगे बहुत जोरदार बात कहते हैं, इसी के अनुसंधान में कहते हैं, एक एक लाइन चलना। अपने को ना अपना माने तब तक ही अज्ञानी है। अपने को ना अपना माने तब तक ही अज्ञानी है। तन में आत्म भ्रांति करके करे स्वयं मनमानी है। तन में आत्म भ्रांति करके करे स्वयं मनमानी है। इष्टानिष्ट कल्पना करके क्यों निज को तड़ पाता है। इष्टानिष्ट कल्पना करके क्यों निज को तड़ पाता है।
ज्ञानवान होकर भी चेतन सत्य समझ ना पाता है। ज्ञानवान होकर भी चेतन सत्य समझ ना पाता है। अपने को ना अपना माने तब तक ही अज्ञानी है। तन में आत्म भ्रांति करके करे स्वयं मनमानी है। इष्टानिष्ट कल्पना करके क्यों निज को तड़पाता है। ज्ञानवान होकर भी चेतन सत्य समझ ना पाता है। ज्ञानवान होकर भी चेतन सत्य समझ ना पाता है। अपने को ना अपना माने तब तक ही अज्ञानी है। शॉर्ट में बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत सुंदर, उत्तम। अज्ञानी कब तक है ये जीव? समय सार में आता है कि ये जीव प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध कब तक है? तो ऐसी गाथा लिखेंगे, ये जीव जब तक ये कर्म और नो कर्म है उनके संबंध में जब तक उसको ऐसी बुद्धि है कि ये मेरे थे, ये मेरे हैं और मेरे होंगे, मैं उनका था, ये मेरे थे और ये मेरे होंगे, इस प्रकार की बुद्धि जब तक रहती है तब तक वो अप्रतिबुद्ध है। और जब उसको ऐसा हो जाता है ये शरीर आदि और ये कर्म आदि और ये राग आदि भाव आदि है, वो न तो मेरे कभी थे, न मेरे हैं, न मेरे होंगे, न मैं उनका कभी था, न वो मेरे थे और न मैं उनका कभी होऊंगा। मैं तो एक सहज शांत ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूं। यही अपना है। अपना जो ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है, वो ही अपना है। क्योंकि अपना किसको कहना? अपने की परिभाषा क्या है? कि जो सदा अपने साथ रहे और सदा अपना होके रहे। जो सदा अपने साथ रहे और जो सदा अपना होके रहे, उसको तो अपन अपना कह सकते हैं ना। अब देखो दूसरे जितने भी तत्व हैं, अब शरीर को ले लो, ये हमेशा अपने साथ में रहता है? नहीं रहता है ना। और ये अपना होके रहता है। अपना होके रहने का अर्थ ये है कि हम जैसा चाहें वैसा ये करें, हमारे अनुसार इसका परिणमन हो, इसका नाम है कि ये अपना है, अपने अनुसार चलता है। परंतु ये शरीर है कभी भी अपने अनुसार चलता नहीं, ये तो उसकी मनमानी, इसलिए इसको अपन अपना नहीं कह सकते। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ना, अपने को 5 इंद्रियां मिली है, उनको अपन अपना कह सकते हैं? उनको अपना अपना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जब हम चाहे, जैसा हम चाहे वैसा ना सुन सकते हैं, ना जैसा स्वाद ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के अनुसार वो परिणमन करेंगे, वो कर्म के अधीन है सब। ये जो वाणी है ना, वो भी अपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसा चाहे वैसा नहीं बोल सकते हैं। इसका जैसा उदय होता है वैसा ही हम बोलते हैं। ये भी निमित्ताधीन है, पराधीन है। जिसको पैरालिसिस हो जाता है अथवा कोई गूंगे वगैरह, वो बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते। और जिसकी वाणी है वो भी अच्छा बोलना चाहता है, कभी कभी बुरा बोल जाता है। बात तो ठीक अच्छी करना चाहता है और निकल के आ जाती है कषायाविष्ट, कर्माधीन है। वाणी निकलना, एक एक शब्द निकलना, वो कर्म के अधीन है, अपने अधीन नहीं। और अपने भाव है ना, राग द्वेष आदि, वो भी निमित्ताधीन है, कर्माधीन है, वो भी अपने अनुसार होते नहीं। तो जब ये अपने इतने निकट हैं, शरीर निकट है, वाणी निकट है, भाव विचार अपने इतने निकट हैं, ये सब जब अपने नहीं हो सकते तो इस शरीर से अत्यंत भिन्न है वो स्त्री, वो पुत्र, वो पति, वो पत्नी, वो घर, वो परिवार, वो धन, वो संपत्ति, वो मित्र, वो कहां से अपने हो गए? क्योंकि वो तो दिन भर उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से कोई चलता नहीं है।
और कदाचित वो हमारी बात मान भी लें। अपना बच्चा होता है ना, वो भी बात नहीं मानता अपनी, माँ की बात बच्चा भी नहीं मानता, 10 बार कहती है तब खाना खाता है, और नहीं खाना नहीं खाएगा। अपने अनुसार कुछ भी होता नहीं है। कदाचित कुछ हो जाए, अपना पुण्य का उदय होता है और कोई अपनी बात मान लेता, उसमें भी पुण्य का उदय भी कर्माधीन है। जहां भी अपनी बात कहीं मानी जाती है, हमारी इच्छा अनुसार कहीं होता है, तो वो हमारे हाथ का विषय नहीं है। अगर उस समय हमारे पुण्य का उदय होता है तद अनुरूप, तो वो अपनी बात मानेगा, और नहीं होगा नहीं मानेगा। क्या करो? राम जी के साथ हुआ ऐसा। सीता जी उनकी आज्ञा अनुसार तहत, आप जैसा कहोगे वैसा, क्योंकि पति परमेश्वर उनकी आज्ञा अनुसार चलने वाले, उनकी आज्ञा का भंग नहीं करे। उन्होंने कहा जंगल में जाओ तो जंगल में, उन्होंने कहा वन में मेरे साथ चलो तो वन में, तुम मेरे को छोड़ के चली जाओ तो चली गई। जो कहा वैसा किया, जब तक राम जी का पुण्य था। और लास्ट में जब सीता जी को वैराग आया और जब दीक्षा ली, उस समय राम जी ने बहुत समझाया कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अनाथ हो जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। उस समय राम जी की बात सीता जी ने नहीं मानी। क्यों? अब आपका पुण्य खलास हो गया भाई। सब अपने अनुसार, अपने आज्ञा में कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये सब अपने पाप और पुण्य के अधीन है। अपने कोई पुरुषार्थ के अधीन हमारा पुण्य होगा तो हजारों लोग अपनी बात मानेंगे, ऑटोमेटिक मानेंगे, और पाप का उदय होगा तो हमारा अपना भी अपनी बात नहीं मानेगा। इसलिए पाप से दूर रहो और पुण्य को भी अपना मत मानो। तो ये कहते हैं कि अपने को ना अपना माने तब तक ही अज्ञानी है। अज्ञान के संस्कार कब तक रहेंगे? जब तक जीव अपने को अपना मानता नहीं है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान 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 हो गया। सद्गुरु परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।